once again to all of you, and thank you very much for the warm welcome. Let God alone be honored and glorified. सभी लोगों को सुप्रभात। और ये जो सुंदर और एक सुंदर स्वागत मेरे जीवन में मिला है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और उसके साथ-साथ सभी बातों में परमेश्वर की महिमा हो। Thank you very much for the warm welcome you always give me, and the welcome on the songs that you sing are very good today. I liked every song that we sang. I think Rajendra Singh started, then I think Deepu, then Brijesh. I was enjoying every song, and I was excited also to sing, and that is the reason I sang that song. और आप लोगों ने जो गीत से शुरू किया और फिर बाद में एक-एक करके गीत गाए। पहले गब्बर सिंह भाई गाए, फिर बाद में जो है दीपू और फिर ब्रिजेश, और उस वो सब गाने को देख करके मुझे भी गाने का प्रोत्साहन मिला, इसीलिए मैंने भी एक गीत गाया। That's the song that I sang, as I said, is a very new song. I heard it on the YouTube. Once I heard it and I saw the inscription in English. Every line was a Bible verse. Maybe next time I will make a note of it and share it with you. And not only that, the tune and the expression, the words that were used were so impacting. And I started singing it every day. I keep singing it 5 or 6 times every day. And that's how, for the glory of God, I thought I would sing it. I was hesitating to sing because I'm not good in Hindi. My wife helped me to write it in English lyrics, and I sang it. That's how I think it came out well. I'm sure all of you like that song. I loved it. So. और मेरे प्यारो, ये जो गीत थी, ये मैंने यूट्यूब में मैंने देखा था, और फिर बाद में मेरे को जो वहाँ की जो वर्डिंग्स था, जो पदें थी, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा है और सब कुछ बाइबल के आधारित थी। इसीलिए मैंने इस गीत को सीखने की प्रयास किया। मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन जो है अंकल की पत्नी, उन्होंने मदद किया और अंकल ने इस गीत को जो है लिख करके गाने का प्रयास किया। आने वाला समय में हो सके तो इस गीत का जो है लिरिक्स को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। Very good. So thank you very much. And once again, I thank God. I thank BDTI. I thank the Wallet Assembly, and very especially Ranjit for continuing to give me the opportunity to share the word. और मैं बीडीटीआई को और ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली को मैं धन्यवादी हूँ, जो उन्होंने ऐसा अवसर मेरे जीवन में देते हैं, और स्पेशली भाई रंजीत को जो मुझे ऐसा अवसर देते हैं कि परमेश्वर का वचन को शिक्षा दूं। All right, let me share my screen and I'll start a study. We are these days studying the expedition of Israel. और इन दिनों में हम लोगों ने जो इस्राएल की मरु यात्रा के विषय में अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। I think in the last 2 classes I gave you an introduction. I also started on the first place, but we will once again restart from the first place that the children of Israel started their expedition. और हम लोगों ने पिछले दिन जो है जो इज़राइल के लोग जो पहला स्थान से शुरू किया है, आइए हम लोग उसी जगह से फिर से हम लोग चलते हैं और हमारी पढ़ाई को, हमारा अध्ययन को जारी रखते हैं। As I said earlier, and I'm saying it once again, the expedition of Israel or to Israel has got a lot of lessons for each one of us in today's life's journey. So I trust this study, this series of study will enable all of us to learn valuable spiritual and day-to-day living lessons. और मेरे प्यारो, जैसे कि मैंने पहले कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, जो इज़राइल का जो यात्रा थी, वो यात्रा आपके और मेरे लिए, हम सभी लोगों के लिए एक-एक जो है सीख होने वाली है उनकी यात्राओं के ज़रिए। All right, now let's read a few verses and then we start our study from the first location. We started this last time, but let me restart this again and walk you through the whole thing. Let's turn with me to Exodus chapter 12 and verse 37. आइए हम लोग जो है एक वचन की ओर जाते हैं। निर्गमन का पुस्तक उसका 12 अध्याय और 37वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। Exodus 12 and 37. और निर्गमन का पुस्तक उसका 12 अध्याय 37वां पद। तब इस्राएली रामसेस रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले
और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पुरुष प्यादे थे। All right. If you read the previous verse in the verse 36, you will understand the background. And verse 37 is when they are starting the journey. Can we read verse 36 also, please? आइए हम और लोग पढ़िए। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह उन सबको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। All right. So that is the context to the starting of the journey. And verse 37 talks about this particular place called Ramesses. This is where they're starting the journey. So the first station that we're going to consider is Ramesses. और मेरे प्यारो, ये जो वचन हम लोगों ने देखा है, जो पहले जो वचन इस तरीके से जो है परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की और रमसेस करके जो जगह है, इजरायली लोग जो कनान देश की ओर अपना यात्रा इजराइल के और उन्होंने अपना यात्रा को शुरू किया। All right. Also, I'm going to read two more verses from Numbers 33, verses 3 and 5. आइए हम लोग जो गिनती का पुस्तक को हम लोग चाहते हैं और वहां पर 33वां अध्याय, गिनती का पुस्तक उसका 33वां अध्याय और 3रा और 5वां वचन को हम लोग पढ़ते हैं। Yeah, Numbers 33, verses 3 and 5. 3रा पद और 5वां पद। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इस्राएली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहलौठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इस्राएलियों ने रामसेस से कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले। All right. In both these verses, the three verses, you have the reference of Ramesses. So that, brothers and sisters, is the start of the Israelite journey or the expedition of to Israel. और मेरे प्यारो, इन वचनों के जरिए, ये जो 3 वचन के जरिए आप लोग समझ सकते हैं कि इजराइल अपना यात्रा जो है रमसेस से शुरुआत की थी। All right, I think we read this verse last time also, which is there on the screen, which is Genesis 47:11. Let's read that verse and then we will start to understand this place called Ramesses. और मेरे प्यारो, पिछले दिन इन वचनों को हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी, और वो वचन जो है उत्पत्ति उसका 47वां अध्याय 11 पद को फिर से हम लोग वही वचन को एक और बार पढ़ लेते हैं। अब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। Oh, thank you. So, as we know, as we considered last time, Ramesses means the best of the land, and that exactly was what Pharaoh, the king of Egypt, had given the so-called Israelites who had come from Canaan and settled down in this place called Ramesses or Goshen, which is Joseph's parents and Joseph's brothers and sisters. That is how the whole history of Israel starts. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जो रमसेस का अर्थ होता है सबसे उत्तम व उपज वाला भूमि। उस भूमि को जो है, जो फिरौन राजा जो था, उसने इजराइल के लोगों को व यूसुफ का जो पिता है, उनके घराने हैं, उन लोगों को वो दिया था। और वो जगह जो गोशन के नाम से भी जाना जाता है, उस जगह को उनको दे दिया गया था, जो लोग की कनान देश से आकर के गोशन में वास किया था, वो है यूसुफ के घराने। All right. Now, as I told you earlier, when the Lord blesses you, He does not bless you alone, but He blesses everyone who's connected with you, whether be it a believer or an unbeliever. You are a chosen vessel, and from you will flow the blessing of the Lord to everyone around you. मेरे प्यारो, जब परमेश्वर आपको आशीष करता है, केवल अकेले आपको ही आशीष नहीं करता, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं,
उन सभी लोगों को आपके जरिए सभी लोगों को परमेश्वर आशीषित करता है। We all know that Joseph was a foreigner in the land of Egypt. He's a और हम Hebrew. Yes, he's a Hebrew, and he was sold to Ishmaelites. The Ishmaelites then passed him on to Pharaoh's, to Potiphar, and he was a foreigner in that land. Yet, the scripture records that land Egypt was blessed because of Joseph. और मेरे प्यारो, आप देखिए यूसुफ का जीवन को अब जानते हैं कि यूसुफ कौन था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यूसुफ को जो है बेच दिया गया था वो इस्माइली लोगों के हाथ में। इस्माइली लोगों ने जा करके पोतीफर के हाथ में समर्पित कर दिया। पोतीफर जो है फिरौन के पास सौंपता है। तो उसी तरीके से जो है यूसुफ को परमेश्वर जब आशीष करता है, पूरा के पूरा मिस्र देश जो है यूसुफ के जरिए आशीषित पाता है। The one story that will help develop a human being and what he should learn is this story or this history, the expedition of Israel. और मेरे प्यारो, एक कहानी, एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सभी लोगों को सीखने की आवश्यकता है और उस कहानी के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा और सीख और सुधार एक विश्वासी को मिल सकती है। वो कहानी है इज़राइल की यात्रा। The tremendous learnings that we have from the expedition of Israel or the mysteries of Exodus is going to reveal to us today and the next few weeks important lessons that we can learn. सो मेरे प्यारो, जो यात्रा इजरायली लोगों ने की थी, उस यात्रा के जरिए बहुत ऐसी रहस्यमय चीजें जो है छुपी हुई है। उस चीजें, वो जो शिक्षा, वो जो सीख उजागर होने वाली है आज और आने वाला हफ्तों में। The expedition of Israel or the Exodus story is very important for many reasons. और ये जो इज़राइल की यात्रा, इज़राइल की जो कहानी है, ये बहुत सारे कारणों है उसका कि वो बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए है। It's a story of liberation from bondage. ये एक ऐसी कहानी है जो गुलामी से आजादी के ओर होना। It's a story of victory over oppressions, those which are coming against you. और ये एक ऐसी कहानी है जो कि सता रहे हैं, आपके ऊपर ऐसी सतावटी आ रही है, उसमें आप कैसे जय पाते हैं। It's a story of how one individual can make a tremendous impact on the others. और मेरे प्यारो, एक ऐसी कहानी है, एक ही एक व्यक्ति जो बहुत सारे लोगों को कैसा प्रभाव डालता है। All right. According to the Jewish system in Exodus, we learn that God brought them out and God made these children his very own. मेरे प्यारो, ये जो कहानी को हम पढ़ते हैं तो जो है हमें ये समझ में आता है, लोगों को परमेश्वर ने जो है गुलामी से आजादी करके ले आया और अपना लोग बनाता है। And then the Lord God entered into a covenant, a lasting covenant relationship with them on Mount Sinai. और मेरे प्यारो, परमेश्वर उन लोगों के साथ ऐसी एक वाचा बांधता है, वो वाचा जो है अनंत काल तक, वह सदैव रहने की वाचा वो बांधता है। वो वाचा सिनोई पहाड़ में वो बांधता है। The Exodus story has endured for many, many thousand years, at least 3,000, 3,000 years. It has endured and we are still studying it. You see the powerful history which Exodus has created. और मेरे प्यारो, ये जो मरु यात्रा की जो कहानी है, ये कम से कम इतिहास में करीबन 3000 साल से ज्यादा हो चुका है। फिर भी ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण है और आज भी उस कहानी को हम पढ़ते हैं। The message that we're going to learn, that we continue to study from the expedition of Israel, and the vision that it gives us is undeniable lessons for every child of God.
और मेरे प्यारो, यहाँ से जो संदेश और सीख मिलती है, वो संदेश एक परमेश्वर का पुत्र व बच्चा के लिए कभी भी वो व्यक्ति व वो परमेश्वर की बच्चा इनकार नहीं कर सकता उसको ग्रहण करने से। All right, let's read two verses from Genesis chapter 57. आइए 2 पदों को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका जो है 57 अध्याय Verses 5 and 6. 5वां और 6वां पद को पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति उसका तब अंकल फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और अपने भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष हैं तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। All right. 7वां No, thank you for that. Now, you see, Pharaoh, who was the king of Egypt, and under his immediate command, next to Pharaoh was Joseph. Pharaoh was very pleased with Joseph's interpretation of the dream, not only the interpretation, but the execution of what he's going to do. Pharaoh was very pleased, and he gives the best of the land in Egypt to Joseph's brothers, their family, and to his parents. और मेरे प्यारो, अब देखिए यूसुफ के जीवन के जरिए, यूसुफ के कर्मों के जरिए फिरौन इतना खुश हो गया है। उसी खुशी के मारे वो जो यूसुफ को और उनके भाइयों को क्या करता है ना, मिस्र देश की सबसे उत्तम से उत्तम जो जगह है उस जगह को जो है फिरौन दे देता है। Now in Egypt is the famous river called the Nile River. और मिस्र देश में बहुत एक प्रसिद्ध नदी है, वो नदी का नाम है नील नदी। The delta or the plains of this river Nile, which means the land nearby this river Nile, is the biblical land of Goshen, or this is where the Exodus journey begins. और मेरे प्यारो, ये जो नदी का तटिया इलाका है, ये नदी के तटिया इलाका बहुत ही सुंदर और उसके साथ साथ जो है उपज वाला जमीन है, इसी जमीन को जो है उनको मिला और यहीं से ही उनकी यात्रा, जो मरु यात्रा शुरू होती है। Now this is exactly where Israel settled, first settled in Egypt according to the Bible. और जो बाइबल के अनुसार यही एक ऐसी जगह है जहां पर इज़राइल के लोग जो है रहते थे व वास करते थे। As I speak, you can follow the presentation also, because I picked up a few maps which are very relevant for us. So as I speak, you can follow that as well. Now, nearly 4,000 years back, Joseph, who is one of our patriarchs, one of our forefathers, he came and settled down, and he came into Egypt. Because of that, his family settled down in this place called Goshen. और मेरे प्यारो, जैसे कि मैं पढ़ाते जा रहा हूं, उसके साथ साथ कुछ नक्शे को भी आपके सामने में ले आया हूं ताकि आप लोगों को उसको समझने के लिए आसान हो जाए। और यही एक ऐसी जगह है जहां पर जो है हमारे आदि पिता, हमारे पूर्वज जो है यूसुफ आकर के इसी जगह में जो गोशन है वहां पर वो स्थायी रूप से वास करने लगा था। All right. From the Bible, we all know that there was a famine that devastated Canaan. और कैनान, Canaan, yes. ओके। और वहां पर एक ऐसी अकाल पड़ी थी, वो अकाल के वजह से जो है कनान देश जो है सूखा पड़ गया था और सबके सब नाश हो गई थी। At that time, Joseph's brothers and his family, they left Canaan and they traveled 200 miles to come to this place called Goshen. और मेरे प्यारो, और उसी वक्त में जो है यूसुफ और उनके भाई लोग कम से कम 200 मीली करीबन जो है 300 200 miles या 200 मीली दूर जो है उन्होंने यात्रा करके इसी जगह में यूसुफ के पास वे लोग आए थे। In that time, under Joseph's leadership,
Egypt flourished, prospered. और यूसुफ जब शासन कर रहे थे, उनकी जो है प्रशासन में और उनकी जो शासन करते वक्त ये मिस्र देश जो है हरा भरा हो गया, भरपूर हो गया धन और दौलत। Brothers and sisters, I want all of us to remember that we are children of God, the most high God, the most powerful God, the most rich God. So wherever we are, whether be it in our home, in our street, in our village, in our town, in our city, in our country, in the place that we work, in the ministry that we do, God will always prosper us, make us flourish. That is what we learned from the life of Joseph. सो मेरे प्यारो, जो परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर अति महान है, अति दयालु है और जो है वो परमेश्वर करुणावान परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो है आपको और मुझे आशीष से परिपूर्ण करता है। कोई भी जगह, कोई भी काम जो है कहीं पर भी हम हम लोग रहते हैं, उसी जगह को और हमको परमेश्वर धन और दौलत से परिपूर्ण करता है, क्योंकि वो परमेश्वर महान है और धनी परमेश्वर है। आपको और मुझे जो है धन और दौलत से, सब कुछ से वो तृप्त करता है। Brothers and sisters, we read in Peter, I think it's First Peter 2:9, that we are a chosen generation, which means the Lord has chosen us. If the Lord has chosen us, He has a great purpose concerning us, and through us, He's going to bless everyone connected with us, and that is what we are learning now. और मेरे प्यारों, हम जो है पहला पतरस उसका 2 अध्याय 9वां वचन में ऐसा पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए जन है, चुने हुए लोग हैं। तो परमेश्वर क्या करता है? चुने हुए लोगों को जो है परमेश्वर आशीष करता है। उस आशीषों से सब लोग जो है आशीषित होते हैं। We must have this confidence in us that we are no ordinary people. We are special people. We are not mediocre. We are superior people because we belong to the sovereign, the most powerful God. We cannot be average, mediocre people. We are always super special. और मेरे प्यारो, आप और मैं जो है कोई आम व कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप और मैं जो है अति महान हैं और जो है ऊंचे दर्जे पाने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वभौम परमेश्वर है, अति महान परमेश्वर। In faith, when we do our ministry, be it spiritual or worldly ministry, in faith when we do it, God will bless that, and you will see how He will make you a blessing to the others. सो मेरे प्यारो, विश्वास के अनुसार यदि आप सेवा करते जाएंगे, भरोसा करते जाएंगे, तो जो कुछ भी आप सेवा करते हैं वो परमेश्वर उस सेवा को, उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर आशीष करता जाएगा। In Genesis 57, we read that Pharaoh was extremely happy with whatever Joseph had done by the interpretation of the dream and by the execution, that he immediately gave his family members the best portion of the land. Brothers and sisters, this is a great lesson for you and me. मेरे प्यारो, हम देखते हैं यूसुफ के कारण जो है जो उत्पत्ति उसका 47वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि जो है फिरौन उत्तम से उत्तम चीजों को, उत्तम से उत्तम जगह को जो है उनको रहने के लिए देता है। मेरे प्यारो, अब देख करके देखिए उनके विश्वास जो है परमेश्वर किस रीति से उनको आशीष करता है। The richest place or the richest land in that whole empire was given to Joseph. और मेरे प्यारो, उस जगह, वो जो धरती है वह मिस्र देश में सबसे उत्तम जगह और सबसे जो धन उत्पन्न होने वाली जगह को यूसुफ को दिया जाता है। Right. Now, this place where they first settled is what you see here on the map called Tel El Daba. Tel El Daba. This is the place where they settle down, or the Goshen as it's called, or the Ramesses. This is the place where Joseph and his descendants settled in Egypt. और मेरे प्यारो, यही एक जो जगह है टेल एल दावा करके जाना जाता है, वहीं पर इजराइल के लोग जो है वो लोग जो है सेटल हुए थे और वहीं पर वो लोग रुके हुए थे।
Now, this is the place which remains even today and known as Tel El Daba. This is the place where the Israelites started their journey, or the Exodus started. और तेल एल दबा अभी तक भी ये जगह का अस्तित्व है और यहीं से ही इज़राइल के लोग जो है अपना यात्रा शुरू किया था। Now, excavations in this place or archaeological findings in this place are continuing to find authoritatively, based on the word of God, that this is the place where the Canaanites or the remnants of Joseph's family came and settled here, and from here they started the journey. मेरे प्यारो, अभी भी जो है जो भू खोदन करने वाले लोग जो है, भूतत्व की अध्ययन करने वाले लोग जो है, वो लोग खोद करके निकाल रहे हैं और ये बाइबल के आधारित जो तत्व है, बाइबल के आधारित जो प्रमाण है अभी भी पाए जाते हैं और यही एक जगह है जहां पर इज़राइल अपनी पहली यात्रा को शुरू की। Okay, we all know that we are in the 21st century AD. और मेरे प्यारो, हम सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो है 21वीं जो है ईस्वी पर हम लोग रहते हैं, 21वीं शताब्दी पर हम लोग रहते हैं। But this place, yes, this place Tel El Daba or Ramesses that we are considering is we are going back to the 19th century BC. और मेरे प्यारो, ये जो जगह है तेल एल दबा, उसका मतलब ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व में हम लोग इस जगह को जाते हैं। All right. People who were living here were living very mediocre lives. और जो लोग यहाँ पर रहते थे वो लोग जो है एक आम आदमी की तरह वो लोग अपना जीवन को गुजार रहे थे। A very simple lifestyle that they were leading. Archaeological findings show they were leading a very simple life. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो भूतत्ववादी, जो भूतत्व शास्त्री लोग अभी जो खोद करके निकाल रहे हैं, वो उसके जरिए हम समझते हैं कि लोग जो है एक आम जीवन को व्यतीत करते थे। All right. Now, archaeological findings very clearly bring out historical evidence that they were the settlers from Canaan and not Egyptians. They came from Canaan and settled down in this place called Ramesses, which is an authentic proof of the word of God. और मेरे प्यारो, जो परमेश्वर का वचन जो है जो बताता है उसके अनुसार ही अभी हम लोग देख सकते हैं कि वो भूतत्ववादी व भूशास्त्री लोग जब जो खोद करके निकाल रहे हैं तो उसके जरिए पता चलता है कि ये लोग यहाँ के स्थायी बासिंदा नहीं बल्कि वे लोग कनान से आए हुए लोग हैं और यहाँ पर वो लोग रहते थे। इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। Now, archaeologists have found out that the house which Joseph had, or Joseph's home, was in a U shape. You know how the U is? In the shape of a U. That is what the architects, the archaeologists have found out. और मेरे प्यारो, आप देखिए जो यूसुफ जहां पर वो वास करता था व रहता था, यूसुफ का घर एक ऐसी घर थी जो आप लोग समझ सकते हैं यू का जो एक यू कैसा अंग्रेजी में यू कैसा लिखा जाता है, उसी तरीका का उसका घर की जो है शेप थी व उसकी जो नक्शा थी। They are authentic proof that this is from Joseph's period. और वो हमें समझ में आता है कि ये जो समय थी यूसुफ का समय का मकान है व घर है। The reason I'm saying all these things very emphatically, based on what I have researched, is this is not story. What we are now learning and reading is not story. It's history. So which means something that has happened in the past, and it's a validation of the veracity or the authenticity of the word of God, the Bible. मेरे प्यारो, जो आज हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ाई व वो जो हम पढ़ रहे हैं वो केवल एंड केवल कहानी ही, साधारण कहानी नहीं मेरे प्यारो, ये इतिहास है। जो घटना हुई है उस घटना जो वास्तविक रूप में हुआ है उस घटना को आप और मैं वर्तमान में पढ़ते हैं। Let's read Exodus chapter 1. Let's read verses 8, 9 and 10. आइए हम लोग निर्गमन का पुस्तक उसका पहला अध्याय 8, 9 और 10वां पद को पढ़ लेते हैं। Exodus 1, 8, 9 and 10.
मिस्र ने निर्गम एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, 10 भी पढ़िए। इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से वार्तालाप करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। All right. After Joseph died, there was a new king, Pharaoh, who had come, and he started the atrocity of slavery amongst these Israelites. मेरे प्यारो, जो है यूसुफ के बाद ऐसा एक राजा एक ऐसा एक फिरौन आया, वो फिरौन की यूसुफ को वो नहीं जानता था, इसीलिए इजराइलियों को गुलाम बना करके उन लोगों से काम करने का जो षड्यंत्र व प्रयास रचा। The excavation and archaeological findings have found out mud bricks which resemble the Bible statistics that are mentioned, that they were molded, these mud bricks were molded by the hands of the Israelite when they were like slaves in Egypt, and that has infallible truth in the word of God and in what the archaeologists have found out. मेरे प्यारो, जो है हम लोग इस बात को समझते हैं, एक और विषय, वो विषय ये है कि जो वर्तमान में अभी बहुत सारे पुराने समय की ईंट जो बनाया हुआ, जो हाथों से बनाया हुआ ईंट वगैरह पाए गए हैं, वो ईंटें इजराइलियों के जरिए जो है बनाई गई ईंटें थी। I hope you are following whatever I'm saying. Yes, uncle, we are following. All right, okay. Not only that, the archaeologists have found out parchments, which means scripts or some kind of documents. In those days, there were no paper. So they used to write on papyrus leaves and all that. So parchments, they are called. Those parchments contain the names of every slave that worked at that time. मेरे प्यारो, और जो है अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे पुराने जो हस्तलिपि देख सकते हैं। उस जमाने में तो कोई कागज नहीं थी, लेकिन जो हम लोग देखते हैं पापिरोस करके एक तरह का जो है पेड़ का जो पत्ते होते थे, और जो है उसमें वो लोग लिख करके उसको संभाल करके रखते थे। वो लिखी हुई जो पापिरस का जो पत्ती है, जो है हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे जो दास थे, गुलाम थे, उन लोगों के नाम एक-एक करके वहां पर लिखी हुई है। And when they studied the names that are written in those parchments, they found out that they are so characteristic of Hebrew name and Hebrew origin. मेरे प्यारो, आप देखिए उनके नाम को यदि आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ने से आपको समझ में आता है कि वो नाम जो है इब्रानी लोगों का नाम है। हम इस बात को जो है उस पार्चमेंट के जरिए समझ सकते हैं। The Israelites continued to stay in that place called Goshen, or in that part of Egypt, many years after Joseph died. और मेरे प्यारो, हम लोग who is staying? The Israelites, or the people who came from Canaan, which is Israel, Joseph's descendants, they stayed for many years there even after Joseph died. और मेरे प्यारो, जो कनान देश से जो यूसुफ का भाई बहन आए हुए थे, इजराइली आए हुए थे, यूसुफ के मरने के बाद भी वे लोग उस गोशन नामक जो जगह है वहां पर काफी साल तक वे लोग वहीं पर रहते रहे। All right. So this Ramesses is, as I said earlier, is a district of the highest quality of the land in Egypt. और मेरे प्यारो, जो जगह रमसेस का नाम मैंने बताई, वो नाम जो है मिस्र देश का ऐसी एक जिला है जिस जिले जो है ये बताता है कि सबसे उत्तम और सबसे अच्छी उपज वाला जो जमीन थी। All right. Now this Ramesses is the home of the kings called Ramses. और मेरे प्यारो, ये जो रामसेस जो जगह है, रामसेस जो जगह है, वो जगह एक ऐसी राजा के नाम से उस जगह का नाम रखी गई थी। उस राजा का नाम ही रामसेस थी। All right. Now, as I told you last time, when we talk about the Roman Catholic head, who is the Pope,
Pope was just a kind of a position, all right, like the governor. It's just a position, but under that Pope, you have Pope John Paul, you have Pope XYZ, many people are there. Similarly, Pharaoh is a position. Under Pharaoh, you have different people, Ramesses I, Ramesses II, Ramesses III. That is how it is. That is how the whole thing comes up. और मेरे प्यारो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रोम में ऐसी होती है कि पोप है ना, पोप जॉन पॉप पोप जो है, और उसके बाद जॉन 1 जॉन 2 और पोप जो है उसके नाम उसके आगे जो पोप डाला जाता है। वैसे ही है कि यहाँ पर मिस्र देश में भी क्या होती थी ना, वो जो है रामसेस 1 रामसेस 2 रामसेस 3 करके जो है राजा आए जाते थे, उनको फिरौन के नाम से वे लोग जाने जाते थे। So this place Ramesses was made to be the summer capital because in a dry place like Egypt. Now this all is a wilderness kind of a place, a dry place, dry heat. They used to have a summer capital where during peak summer they can go and they can be there for 1 or 2 months till the heat subsides and then they come back. This Ramesses, this place Ramesses was the summer capital of the king or pharaoh. मेरे प्यारो, यदि हम लोग देखेंगे, रमसेस एक ऐसी जगह थी जहां पर जो है जो राजाएं थे, वो राजाएं क्या करते थे ना, गर्मी के वक्त में, गर्मी का मौसम में वे लोग इस रामसेस नामक जगह में जा करके 2 महीना या 3 महीना रह करके अपना जीवन को वहां पर गुजार करके, जब मौसम जब ठंडी हो जाती थी, उस वक्त जो है आ करके अपनी जगह में वे लोग रहने लगते थे। Like और how it ये yes. यस Sorry. Now, like how it happens here, normally for us, when it is May and April and May and June, when the summer is at peak, we all go to various resorts, right? We go to cool places to stay there for a few days and then come back to enjoy that. Similarly, this Ramesses was the summer capital of King Pharaoh or Ramesses II. और मेरे प्यारो, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है जब गर्मी होती है तो कोई रिसोर्ट जगह में, ठंडी जगह में हम जा करके रह करके वहां के आनंद व वहां के लाभ उठा करके हम आने का प्रयास करते हैं। वैसे ही है कि जब गर्मी के वक्त में ये जो जगह थी रामसेस, वहां वो एक ठंडी जगह के नाम से वो जानी जाती है। वहां पर वो राजाएं जा करके अपना समय को गुजार करके वे लोग आया करते थे। History says that Ramesses was called the store city, the store city. और इतिहास हमें बताती है कि रामसेस जो है ऐसे एक भंडार जगह है जहां पर जो है वे लोग अपना भंडार, अपना जो चीजें हैं वे लोग एकत्रित करके रखते थे। It was a place where the provisions were stored, military provisions were stored, and all provisions required for people were stored, and it was sent to different places. That is a place called Ramesses. और मेरे प्यारो, हम जानते हैं कि ये एक जो है बेयर हाउस, घर वगैरह बने हुए सामान थे। वे लोग अपना अनाज और उपज को जो है वहीं पर रखा करते थे, जैसे कि जो है सेना लोगों के लिए और लोगों के लिए भी अनाज जो है यहीं पर इकट्ठा करके बेयर हाउस सामान बना करके रखा करते थे। उसके बाद जो है यहीं से ही जो अनाज है वो विभिन्न जगहों में वितरित किया करते थे। Now, this Ramesses, from this place, the pharaoh or Ramesses II was the third king in that dynasty in the 19th century BC. He was the third king in that lineage. और मेरे प्यारो, यदि हम लोग देखेंगे रामसेस में जो है देखेंगे तो फिर वो व्यक्ति जो 19वां ईसा पूर्व में वो तीसरा राजा वहां का था। All right, so he was reigning the whole of Egypt. और वो पूरा जो मिस्र देश को वो शासन कर रहा था। He was the longest pharaoh or the longest king in ancient history who reigned for the longest period. और वो एक ऐसा राजा था सबसे ज्यादा लंबे समय तक और जो है वहां पर वो शासन किया था। इजिप्ट को उसने व मिस्र देश को उसने शासन किया था। He used to go with war against the Hittites very constantly.
और मेरे प्यारो, जो हित्ती लोग हैं, उन लोगों के साथ जो है बार-बार जा करके वो युद्ध लड़ाई करता था। Not only that, he was known for building programs, architecture, buildings. So this Ramesses or this pharaoh was known for architecture and buildings and construction very well. और मेरे प्यारो, वो राजा भी ऐसा एक राजा था, वो बहुत अच्छे और सुंदर-सुंदर जो मकाने हैं, बिल्डिंग है, वो बनाने में उसकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। All right. He built a lot of images of himself all across the kingdom. और उसने अपनी मूर्तियां जो है पूरे के पूरे जो मिस्र देश में अपना मूर्तियां उसने बना करके स्थापना किया था। In many places, we see beautiful images or statues or great structures of people who have dead and gone or people who are living. So this Ramesses II or this pharaoh was known for building those kind of structures. और जो रमसेस है, उस जगह में भी ऐसे ही बहुत सारे मूर्तियां जो है स्थापन किया हुआ हम लोग पा सकते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारे जगहों में देखते हैं कि लोग जो मरे हुए हैं वो और जो जीवित है, उनकी जो मूर्तियां जगह-जगह चौराहे पर जो है खड़ा करके रखते हैं। वैसे ही इस जगह में भी हम लोग जो है देख सकते हैं उसी राजा का व उस फिरौन राजा का मूर्तियां स्थापित Yeah, किया गया था। this pharaoh was known for building temples, building monuments, building various cities. He was a man with an architectural background. और मेरे प्यारो, ये जो राजा था, वो राजा बहुत सारे ऐसे जो है मूर्तियां उसने बनाई, बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े जो इमारतें, बड़े-बड़े जो है बिल्डिंग्स वगैरह उसने बनाया। और इस राजा जो है ऐसे ही कारीगरी के लिए वो जाना जाता है। Not only that, he was very skillful in military operations. He was a great and powerful military leader. उतना ही नहीं, बल्कि जो है सेना को कैसे संचालित किया जाता है, उसके लिए भी वो बहुत ही माहिर था। All right, now we are talking about Ramesses II or King Pharaoh of Egypt. We are talking about his background, his characteristics. और अभी हम लोग वर्तमान में रामासिस 2 जो राजा था, उस राजा के बारे में अभी हम बातें कर रहे हैं। Now, his father's name is Sethi, S-E-T-H-I, Sethi I. That is the name of this Ramesses II's father. और रामासिस 2 जो है वो राजा जो था, उस राजा का पिता का नाम सेथी था। And his mother's name was Tuya, Queen Tuya, T-U-Y-A, Tuya. That was the name of his mother. और जो रामासिस 2 का माता जी का नाम जो था थी, वो तुया करके है। Now, when Ramesses, the Pharaoh II, or Ramesses II, when he was a young boy, he was involved along with his father in all these wars and all these kind of capturing and all that. He was involved along with his father Seti I from a very, very young age. और मेरे प्यारो, जो रामासिस 2 जो है, वो अपने जवान के समय में ही अपना पिता जो है सेथी है, उसके साथ जो है बहुत सारे युद्ध में, बहुत सारे लड़ाइयों में अपने आप को जो है शामिल करके वो भी युद्ध अपने पिता के साथ वो लड़ता था। He used to follow his father. He used to go with his father wherever his father went. और उस उनका पिता जहां-जहां वो जाता था, वहीं-वहीं जो है रामासिस 2 उनके साथ-साथ वो जाता था। By the time he came to rule Egypt, he had fantastic experience and in terms of kingship and also in terms of war. मेरे प्यारो, जब तक कि वो शासन करने के लायक हो गया, वो बहुत ही ज्यादा माहिर हो गया शासन करने में, और उसके साथ-साथ युद्ध करने में भी बहुत ही निपुण और माहिर हो गया था। History says that Ramesses II became a king at a very young age. और इतिहास हमें ये बताती है कि वो जवानी के समय में ही वो राजा बन गया था। Before becoming a king, he was made the captain of the army. Can you guess at what age he was made the captain of the army?
और मेरे प्यारो इतिहास हमें ये बताती है कि बहुत जवानी के समय में ही वो जो है एक सेना का सेनाध्यक्ष बन गया था। क्या आप बता सकते हैं कौन सी उम्र में वो एक सेनाध्यक्ष बन गया था? Can you guess what age he became a captain of the Egyptian army? क्या आप इस At the बात को बता age, सकते हैं या कौन सी उम्र में वो yeah, सेनाध्यक्ष बन गया था, बस सेनापति बना था? maybe none of us know it because I researched it. I know it. History says at the age of 10, at the age of 10, he became the captain of his father's army. मेरे प्यारो इतिहास हमें ये बताती है कि जो है 10वां साल की उम्र में ही उसका पिताजी का जो सेना थे उस सेना का सेनाध्यक्ष बन गया था। All right. So this Ramesses II, or Pharaoh, he lived in the fertile delta area of the River Nile. और मेरे प्यारो यही जो रामासिस 2 जो है वो क्या है ना, नील नदी के बहुत ही जो सुंदर जगह है, जो उपज वाला जो भूमि है, जमीन है, उस जगह में वो रहता था। Now, this is the background of Ramesses, the place that we are considering as the first place of where the Exodus started or the expedition started. और मेरे प्यारो यही है जो रामासिस की पृष्ठभूमि, जहां से इजरायली लोग अपनी यात्रा को शुरू की थी, अपनी मरु यात्रा को शुरू की थी। Now, as I told you, what you see there in the screen are the various architectural design and structures which this Ramesses II, or Pharaoh, built during his empire. और मेरे प्यारो ये आप जो है इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यही एक कारीगरी है, यही जो बहुत बड़े-बड़े इमारतें हैं अपने शासन काल में उसने बनाया था। Now, Ramesses was also very famous for beautiful layouts, beautiful gardens, orchards, and pleasant waters. I mean, it's a beautiful architectural design of the city with gardens and orchards and waters and all that. और मेरे प्यारो रामासेस भी इस नाम से इसके लिए वो जाना जाता है कि वहां पर बहुत अच्छे-अच्छे सुंदर-सुंदर जो बागान है, बहुत अच्छे सुंदर-सुंदर जो गार्डन है, और उसके लिए भी और मधुर व मीठी पानी के लिए भी वो जानी जाती है। Now, it is so significant that that whole city, which is the capital which this Ramesses II created, is called Pi Ramesses. I told you last time itself, Pi Ramesses. That was the capital city created by this Ramesses II, this King Pharaoh in Egypt. That was the capital. और मेरे प्यारो ये जो रामासेस 2 जो राजा था, फिरौन राजा था, वो एक ऐसी शहर का उद्भावन किया था, ऐसी शहर का निर्माण किया था, उस शहर का नाम है पाई रामासेस के रूप में जाना जाता है। And he had this whole city called Pi Ramesses on 4 corners. It was the deity or the gods that they were worshipping. He had their deities in all the 4 corners of that city. और उस शहर की चारों दिशाओं में जो रामासेस 2 जो शासन कर रहा था, उस शहर की चारों दिशाओं में उसने जो है ऐसी देवी व ऐसी भगवान का मूर्तियों को उसने स्थापना किया था, जिस भगवान को वे लोग पूजा करते थे। Now he had the statue of Ammon in the western part of that city. और जो है यदि हम लोग पश्चिमी दिशा के ओर देखें तो वहां पर आमोन करके एक ऐसी देवता का मूर्ति को उसने स्थापना किया था। He had the deity of Seth in the south. और सेत अंकल, Seth, yes, Seth. और जो है हम लोग देखेंगे दक्षिणी दिशा के ओर देखेंगे तो वहां पर जो है सेत नामक ऐसी एक मूर्ति और ऐसी एक देवता का उसने स्थापना किया था। And in the north, he had a royal cobra goddess called Wadjer, Wadjer, Wadjer. It depicts the royal cobra goddess that was in the north part of the city.
और यदि हम लोग उत्तरी दिशा के ओर देखेंगे तो वहां पर उसने क्या किया था ना, एक राजकीय जो एक सांप हम लोग देखेंगे, उस सांप का नाम ऐसा है कि वाजेर के नाम से वो जाना जाता है। उसकी मूर्ति को उसने वहां पर स्थापना किया था, उस देवता की You see, मूर्ति को उसने स्थापना किया था। yeah, you see, way back in the 19th century BC, they were worshipping the cobra as a goddess. It started from then onwards. मेरे प्यारो आप देखिए 1900 ईसा पूर्व से ही वे लोग इस सांप का जो भगवान है उसको उसी समय से वे लोग पूजा करते हुए आ रहे थे। All right. Now, on the east side of the city, this was the Syrian goddess called Astarte. Astarte. That was the Syrian goddess which he had depicted. So the four corners were depicted with various deities. और मेरे प्यारो आप देख करके देखिए कि जो है पूर्व दिशा में देखें तो फिर आस्तार्ते करके ऐसी एक जो है भगवान उसको अब देवता है उसका उन्होंने पूर्व दिशा में स्थापना किया था। I told you this Ramesses II, or this pharaoh, he went on a war with Hittites and he married the eldest daughter of the king of the Hittites. और मेरे प्यारो मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया ये जो रामासेस दो जो फिरौन राजा है वो जा करके पहले क्या करता था ना, जो हित्ती लोग हैं व हित्ती देश के लोगों के साथ वो युद्ध करता था और वहां पर हराने के बाद उस वहां की राजा का जो है सबसे बड़ी जो बेटी थी उसके साथ उसने ब्याह कर लिया। Now, after a few years, he left her, he married another princess of the land of, from the land of Hittites. और मेरे प्यारो कुछ साल के बाद जो है उस स्त्री को उसने त्याग दे करके छोड़ करके एक और जो हित्ती स्त्री थी उसके साथ उसने ब्याह कर लिया। So this Ramesses is considered to be the greatest and the most powerful pharaoh in the Egyptian kingdom. He is the most powerful pharaoh. और मेरे प्यारो यदि ये रामासेस दो जो फिरौन राजा था इसके बारे में देखें तो उस जहां पर वो मिस्र देश में जितने सारे राजा शासन कर रहे थे उन फिरौन राजाओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में वो जाना जाता है। But what you see there on the pictures is the Ramesses II, the one that we are talking about. This is the mummy or the preserved, whatever remains there. Archaeological findings, excavations have found it. This is the Ramesses II at his death, is what is depicted here. और मेरे प्यारो आप देख सकते हैं ये जो चित्र है वो चित्र रामासेस दो का जो एक संरक्षित किया गया एक मम्मी के रूप में हम लोग देखते हैं, सुरक्षित रीति से उसको जो है मम्मीफिकेशन करके जो है उसको रखा गया है। Yeah, the mummy means these are highly preserved. Even those days, normally what happens these days, when anyone passes away and you have to preserve them and bring them and keep them for a few days till the others come, then they preserve it in the mortuary. Similarly, in those days, they used a lot of chemicals to preserve and they're being preserved even till date. और मेरे प्यारो आप देखिए कि जो है वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो उसको जो है आप मोर्चरी में रख करके कोई डेड बॉडी को बाद जो मरा हुआ शव है उसको कुछ दिन तक आप लोग रख सकते हैं, फिर बाद में उसको जला देंगे या दफना देंगे। लेकिन उस जमाने में जो है वो जो लाश होती थी उसको ऐसा केमिकल वे लोग इस्तेमाल करते थे और काफी दिनों तक उसको रखे रहते थे और आज तक भी वो जो मृत शरीर है आज तक भी वो उसकी जो सड़ी नहीं है रखी हुई है। All right. Now, this is a picture that I grabbed from the net, and this shows that Ramesses II, which is in the 19th century BC, has been preserved as a mummy and kept. और मेरे प्यारो ये जो पिक्चर है मैंने इंटरनेट से मैंने लिया था और ये हम लोग देखते हैं कि 1900 ईसा पूर्व में ये जो रामासेस दो का जो शरीर है उसको संरक्षित करके रखा गया था। Okay, so this is a little bit of history and geography of the first place
or the first station of the Israelite expedition or the exodus of Israel called Ramses. और मेरे प्यारो, ये छोटी सी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने दिया था जो रामासेस जहां से इसराइल ने अपना यात्रा को शुरू की थी, और उस जगह के विषय में, उस राजा के विषय में मैंने बताया। He is the greatest of all the kings in Egypt. और वो जो है जितने सारे राजा थे, उन राजाओं में सबसे महान राजा के रूप में वो जाना जाता है। History says that he had 200 wives, 93 sons and 60 daughters. और इतिहास हमें बताती है कि उसके 200 पत्नियां थी और 93 बच्चे थे और 60 लड़कियां थी। And then history says that he died at the age of 96. और इतिहास हमें ये बताती है कि जो है 96 साल की उम्र में उसकी मौत हुई थी। And then he was also the longest reigning pharaoh. और हम लोग इस बात को समझते हैं कि सबसे ज्यादा उम्र तक शासन करने वाला एक फिरौन था। And then, okay, these are some of the important things which I will pass it on to you. I have not sent you the introduction presentation earlier, but today I will send you that, as well as the up to Ramesses what we have studied. I will send it to you. I will close it here, and God willing, we'll start from the next place. Today we considered Ramesses. There was a lot that I had to share, but every place is not going to be so elaborate. So I think we'll be able to cover 2 or 3 stations every day starting from tomorrow. और मेरे प्यारो, जो है मैंने एक आज रामसेस के बारे में आप लोगों को बताई, वो ऐसी जो जगह है, हम लोग पूरा जगह को ऐसे ही कवर नहीं कर पाएंगे इतना विवरण दे करके, लेकिन हर समय जो है 1 या 2 जगह को हम लोग देखते हुए जाएंगे। आज हम लोगों ने उस रामसेस शहर और उसके साथ साथ रामसेस का जो राजा था उसके विषय में आज हम लोगों ने अध्ययन किया है। Dear There were a uncle, lot thank of you so details much. in Ramesses. Yes. That's why I took some. Otherwise, other places and all that, you don't have so many details. So whatever I could gather, I presented to you. So this just gives us a good background of how the Israelites started their journey, from which place, and then we will look at every location. Okay. और ये जो है बहुत अच्छी एक जगह थी जहां पर बहुत सारे बातों को हम उनको पढ़ने की आवश्यकता थी, इसीलिए मैं रामसेस के बारे में थोड़ा विस्तारित से विवरण किया। डियर अंकल, thank you so much for the wonderful historical background that you brought